ਆਏ ਹਾਏ ਮੌਸਮ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੀ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਡੇਲੀ ਰਵੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜੀ ਲੱਗਾ ਰਵੇ। ਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫੇਰ ਸਨੋ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋਰ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ। ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਿਰਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਮੌਸਮ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੈਨੇਡਾ। ਕੈਲਗਰੀ ਲਾ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਾਮ, ਹੈ ਨਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਆ, ਆਪਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਡੇ ਆ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ 4-5 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 2-4 ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਟ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ 10 ਤੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਰਮਲੀ ਹਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਪੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ AC ਚੱਲ ਪਏ ਆ ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, 22-23 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ। ਪਰ ਮੌਸਮ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਠੰਡਾ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ AC ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ, ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਉੱਧਰ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਸ-ਪਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੀਸ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਟ੍ਰੇਨ ਲਈਏ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧੁੱਪ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਫ ਸਫਾਈ, ਗ੍ਰੀਨਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਓ ਸ਼ਿਟ ਮੈਨ, 15 ਮਿੰਟ ਪਏ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਨਾ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣ ਨੂੰ। ਸੋ 15 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਹੁਣ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਜੋਬ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੋਬਾਂ ਵਾਧੂ ਆ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ 100 ਦੇ 100 ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹ ਤੋਂ ਜੋਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੋਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋਬਸ ਵਾਧੂ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਲੱਭਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਕਸੀਮਮ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਜੋਬ ਲੱਭਣ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੱਟ ਕੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਏਜੰਸੀ 'ਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੂਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਟਿਮ ਹੋਟਲਸ, ਮੈਕਡੋਨਲ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ, ਆਪਣਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜੋਬਸ, ਇਹ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਦੀਆਂ ਜੋਬਸ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਮਤਲਬ ਜੋਬਸ ਵਾਧੂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਾਇਕ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜੋਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯਾਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ, ਪਲੱਸ ਇੰਨੀ ਗਰੀਨਰੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਮਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਦੇ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਲੋ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਮਰ ਦੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਗਰਮੀਆਂ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਆਈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਕੇਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ। ਆਹ ਲੋ ਵੀ ਗੁੱਡੀ ਸਵਿਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਾਹੌਲ ਆ।
सोनिए, हाउ आर यू? Not too bad. Good? Enjoying the sunny day? I'm just sitting here cooking. See my nurse tomorrow. I plan to go to some of those. हम्म। मैंगो शेक लिया हुणी ਆਪਾਂ $2 ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਰੇੜੀ ਰੂੜੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਪੀਵੇ, ਆਪਣਾ ਮੈਂਗੋ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਕਡੋਨਲ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਤਲਬ ਰੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਗੁੱਡੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਹੀ ਆ ਓਏ। ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਪਤੰਗ ਲਿਆ ਝਾੜ ਗੋਰੀਏ, ਚੜਿਆ ਚਵਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ। ਗੁੱਡੀ ਪਤੰਗ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਨੇ ਆ, जिस चीज़ के करके तुसी इस वीडियो के उत्ते क्लिक किया है। सो अब इससे आगे मैं वीडियो हिंदी में बनाना शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ भी आपको कैसे, जो आपका सबसे मेन मुश्किल है कनाडा में आके, वो है कि अपनी फ़ीस पे करना कॉलेज की अपने बाई सेल्फ, ठीक है ना। अपने आप इतनी ज़्यादा अमाउंट पे करना इज़ नॉट ए ईज़ी डील, ठीक है। बहुत सारे पैसे लगते हैं, और ये इंडिया में बैठे बैठे लगता है भी कनाडा में तो पैसे पेड़ों पे लगते हैं, डॉलर ऐसे ही आ जाते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा मेहनत और 8-8 10-10 घंटे की नॉन स्टॉप शिफ्टें लगाने के बाद फिर जाके पैसे मिलते हैं, ठीक है। सो फिर भी बहुत कम पैसे मिलते हैं। आप सोचो, क्योंकि हम स्टूडेंट्स लोग हैं तो हमारा फ़ायदा बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। कनाडा में आपको मिनिमम वेज पर रख कर आपसे डबल पैसों वाला काम करवा लेंगे, मतलब आपको $15 पर रखेंगे, काम आपसे करवा लेंगे $25 वाला, ठीक है। तो अब जो लोग स्टेट में आना चाहते हैं, मैं उनको बताता हूँ भी आपको अपनी फ़ीस इंस्टॉलमेंट में कैसे पे करनी है, जैसे मैंने पे करी है। देखो, मैंने सिर्फ पे करी है इंस्टॉलमेंट में एक सेमेस्टर की, जो मेरा अभी चल रहा है 4th सेम की, ठीक है। तो एक सेमेस्टर की तो मेरी होगी थी इंस्टॉलमेंट में, अब 2 सेमेस्टर की तो इंडिया से ही पे होके आती है, तो 2 सेमेस्टर बचते हैं ना। अब मेरे को इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है भी 2 सेमेस्टर की इंस्टॉलमेंट में हो जाती है या सिर्फ एक की होती है, पर मेरे को लग रहा है 99% की दोनों सेमेस्टर की हो जाएगी इंस्टॉलमेंट में। अगर आपकी थर्ड की भी कम पड़ रही है तो आप थर्ड के टाइम भी इंस्टॉलमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, फिर उसके बाद 4th के लिए भी अप्लाई कर देना। मैंने सिर्फ एक के लिए करी थी, 3rd सेमेस्टर की मैंने मुश्किल से अरेंज कर ली थी, ठीक है। तो 4th के लिए मेरे पास पैसे कम पड़ रहे थे, इसलिए मैंने इंस्टॉलमेंट प्लान चूज़ किया। मेरी फ़ीस है 4th सेमेस्टर की $9,000। तो 9,000 को इंस्टॉलमेंट में कैसे हुआ, मतलब कि मेरी डेडलाइन थी 20 मई, मेरा मई वाला जो सेमेस्टर था मई से सितंबर, 20 मई तक मुझे 9,000 देना था, पर मैं नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने इंस्टॉलमेंट प्लान चूज़ किया। उसकी वजह से क्या हुआ कि 20 मई को 3,000, 20 जून को 3,000 और 20 जुलाई अब नेक्स्ट मंथ 3,000 मेरे को और देना है। सो 3 मंथ में 3-3 हज़ार करके अब मेरे को फ़ीस अपनी देनी है, जो कि बंदा अरेंज कर लेता है, जबकि एक साथ 9-10 हज़ार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको भी अगर ये तरीका फॉलो करना है तो आपको क्या करना है भी, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ जिसका नाम है सेट स्टूडेंट इंस्टॉलमेंट प्लान, ठीक है। उस लिंक पे आपको जाना है। जब आप उस लिंक को खोलोगे तो आप सेट की एक वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, वहाँ पे उनका एक फॉर्म होगा, आपको वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। वहाँ पे आपसे पूछेगा न्यू स्टूडेंट हो या रिटर्निंग स्टूडेंट हो,
तो आप अगर तो न्यू तो नहीं होगे, क्योंकि पहले 2 की फ़ीस तो आपने दी होगी, तो आप तीसरे की दोगे ना, तीसरे तक तो आप न्यू नहीं रहोगे, रिटर्निंग ही होगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको वो फॉर्म फिल करना है, वहाँ पर बहुत सारा कुछ आपसे। मेरे को कॉल आ गई थी बीच में, जिसकी वजह से वीडियो मेरे को स्टॉप करनी पड़ी। तो हाँ, हम कहाँ थे, मैं आपको बोल रहा था भी आपको वो फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म में आपसे कितना कुछ पूछेगा वो ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सोच समझ के फिल करनी है, तभी आपका जो स्टूडेंट का जो आपका इंस्टॉलमेंट प्लान है वो अप्रूव्ड होगा। अगर आपने उसमें अच्छी तरीके से नहीं फिल किया तो आपका रिजेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको फॉर्म में कितना कुछ पूछेगा वो आपसे, वो एक क्वेश्चन पूछेगा भी अब ऐसा क्या हो गया कि आप फ़ीस नहीं दे पा रहे, अब पहले आप कैसे फ़ीस दे रहे थे जो अब नहीं दे पा रहे। तो आपको वहाँ पर कुछ सॉलिड रीज़न देना पड़ेगा भी पहले मेरे पेरेंट्स मेरे को सपोर्ट कर रहे थे इंडिया से मेरी फ़ीस देने में, अब हमें फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम आ गया इंडिया में, कुछ लिख देना भी हॉस्पिटलाइज हो गया मेरे घर वाले, या ऐसा है वैसा है, कुछ भी मतलब सॉलिड रीज़न देना भी मेरे को अब इंस्टॉलमेंट प्लान चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में हूँ फाइनेंशियली। फिर एक क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा भी एक्सप्लेन करो डिटेल में भी आप इंस्टॉलमेंट्स में कैसे अपनी फ़ीस दोगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको सॉलिड से एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी भी आप कैसे इंस्टॉलमेंट में दोगे। जैसे मैंने लिखा था, अब मेरे को याद नहीं है अभी मैंने क्या लिखा था, पर मेरे को थोड़ा याद है। मैंने लिखा था भी मेरे फादर जो है फाइनेंशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है उनको इंडिया में, पर सिर्फ 1 महीने की बात है, उसके बाद मेरे फादर मेरे को पैसे भेज देंगे इंडिया से, ठीक है, मेरी फ़ीस के लिए। तो अभी मेरे पास यहाँ पर $4,000 to $5,000 हैं, तो मैं अभी अपनी 2 इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकता हूँ, और तीसरी इंस्टॉलमेंट तक मेरे इंडिया से पैसे आ जाएंगे, तो मैं आपको वो भी आपकी इंस्टॉलमेंट में फ़ीस दे दूँगा। तो मैंने ऐसा करके बोला था। अब आप देख लेना आपको क्या बोलना है। वो सारा फॉर्म फिल करने के बाद उस फॉर्म के नीचे 2 ऑप्शंस होंगी। एक तो होगी भी अटैच करो अपना स्टडी परमिट, ठीक है, अपने स्टडी परमिट को आपको उसमें अटैच करना होगा जो आपको यहाँ पे एयरपोर्ट पे आपको मिला होगा, ठीक है। दूसरा होगा अटैच योर बजट स्प्रेडशीट। अब ये बजट स्प्रेडशीट क्या चीज़ है, इसका भी मैं लिंक आपको, एक्सेल की ये शीट होती है, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना, खोल लेना। डाउनलोड यूट्यूब से हो जाता है या नहीं मेरे को पता नहीं, कोई नहीं, मैं देख लूँगा कैसे करूँगा, वरना आपको इंस्टाग्राम पर सेंड कर दूँगा, मेरे को DM कर देना ठीक है। आपको वो एक्सेल की स्प्रेडशीट फिल करनी है, उसमें बहुत कुछ होगा भी अपनी इनकम बताओ, कार का आपका कितना खर्चा है, आपका रेंट का कितना खर्चा है, ग्रोसरी का कितना खर्चा है, आपका मोबाइल का कितना खर्चा है, आपने कोई स्टडी लोन लिया है या नहीं, आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई फंडिंग हो रही है या नहीं, ऐसा बहुत सारे 12-13 क्वेश्चन होंगे। उनमें आपको अमाउंट डालनी है, तो कुछ भी ऐसे ही डाल देना भी मेरा 600 रेंट है, मेरी 300 ग्रोसरी है, मेरा 200 मोबाइल का बिल है, ताकि, और उसमें मंथली आपकी वो भी पूछेगा भी आप अर्निंग कितनी कर रहे हो, तो मंथली आप वहाँ पे 1200 डाल देना, और अपना खर्चा वहाँ पे दिखा देना 1100 कुछ, ताकि लगे भी इसकी तो सेविंग ही बहुत कम हो रही है, ये तो बेचारा गरीब है, इसके पास पैसे नहीं है, तो वो मान जाएंगे भी सच में इसको इंस्टॉलमेंट की ज़रूरत है। वो स्प्रेडशीट भरने के बाद उसको भी आपको वो वाले सेट के फॉर्म में अटैच करना पड़ेगा, स्टडी परमिट और वो वाला सेट का वो वाली स्प्रेडशीट आप जब दोनों अटैच कर दोगे और सारा फॉर्म फिल कर दोगे, उसके बाद आप वो फॉर्म सबमिट कर देना। फिर आपको 1 हफ़्ते तक वेट करनी है। वैसे वो अपनी साइट पे लिखते हैं अभी 2 से 3 दिन तक आपको रिप्लाई आ जाएगा, पर मेरे को आया था 1 हफ़्ते के बाद। आपको 1 हफ़्ते के बाद मेल आ जाएगी भी आपका इंस्टॉलमेंट प्लान अप्रूव्ड हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। अगर आपको अप्रूव्ड की मेल आई तो आपको बोलेंगे भी आपका हमने इंस्टॉलमेंट प्लान अप्रूव्ड कर दिया है, अब आपको इस डेट को इतने पैसे देने हैं 3 मंथ में। अगर आपकी लगा लो 12,000 फ़ीस हुई, ठीक है, तो 4-4 हज़ार की आपको डेडलाइन आ जाएगी, इस डेट तक आपको 4,000 देना है, इस मंथ को 4,000 देना और इसको 4,000 देना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपका इंस्टॉलमेंट प्लान अप्रूव्ड हो जाएगा और आप अपनी फ़ीस निकाल पाओगे। आपको थोड़ा इजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू कि एक बार में सारी फ़ीस देना, ठीक है जी। तो ऐसे होता है इंस्टॉलमेंट प्लान सेट का। अगर आपको कुछ भी किसी भी स्टेज पे जाके कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं जब भी फ्री हूँगा आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। मैं चाहता हूँ भी सभी अपनी फ़ीस अच्छे से निकाल पाएँ, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए फाइनेंशियली, ठीक है। सो यही थी आज की वीडियो, आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के बारे में बताना था। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया। चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।